راہوں میں روشنی اس کا نام، زندگی کا یہ سفر آسمانی خوشی، ہر قدم پہ رہنما ساتھ ہے خدا، زندگی کا سفر، زندگی کا سفر۔ مسیح کے خوبصورت جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب دیکھنے والوں پر سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صوبیہ جان اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی کا سفر۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں زندگی کے سفر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری پیاری بہن سسٹر عالیہ۔ جی سسٹر عالیہ، ہم آپ کو ویلکم پیش کرتے ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ اور تھینک یو، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا تاکہ آپ خدا کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں۔ شکریہ صوبیہ جان، میں بہت شکر گزار ہوں یہاں آنے کے لیے کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا تاکہ میں خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ اور اپنی جو ہمیں دیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور میں بہت شکر کرتی ہوں آپ کے اس پروگرام کے لیے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید سسٹر عالیہ کے بارے میں جانیں تو میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے ہم ایک دعا کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ خدا کے جلالی نام سے کریں۔ ہالےلویا۔ ہمارے پیارے زندہ آسمانی باپ، شکر گزاری کرتے ہیں آج اس خوبصورت وقت کے لیے۔ اے خداوند کہ تو نے ہمیں مل بیٹھنے کا موقع دیا۔ آج ہم جو کچھ بھی سیکھیں، جو کلام کی باتیں اے خداوند ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اور جب دوسرے لوگ سنیں تو اے خداوند وہ بھی ایمان میں مضبوط ہوں اور سارا عزت اور جلال تیرے نام کو ملے۔ یہ سب کچھ مانگتی پا لیتی تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا میں یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ جی سسٹر جی، ایک بار پھر آپ کو ہم دوبارہ سے اپنے اس سیٹ پر ویلکم پیش کرتے ہیں۔ ہم مزید جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اپنی ٹیسٹامنی شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے وسیلہ سے زیادہ کچھ سیکھ سکیں کہ ہمیں کیسے ایمان میں آگے بڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں خدا ان کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں بار بار اپنے پاس آنے کے موقع دیتا ہے۔ میرا تعلق شروع سے ہی ایک مسیحی گھرانے سے تھا۔ بچپن ہی سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں بائبل پڑھنا اور پھر چرچ جانا یہ سب کچھ سکھایا تھا۔ 2000 میں نے بپتسمہ لیا۔ جی۔ اس کے بعد 2021 میں ہم تھائی لینڈ چلے گئے اور وہاں پر میں نے جو پاک روح ہوتا ہے خدا کا اس کو حاصل کیا۔ اس کے بعد سے میری زندگی جو تھی وہ بدل گئی اور میں خدا ان کے اور زیادہ مضبوط ہوتی گئی، اور خدا ان کا شکر ہے کہ اب میں اس کے ساتھ اور زیادہ اس میں مضبوط ہوں، خدا کے کلام کو جانتی ہوں اور اس پر عمل کرتی ہوں۔ یہ اس کا بہت زیادہ فضل ہے مجھ پر۔ جی سسٹر جی، ہم نے آپ کی گواہی سے بہت برکت پائی۔ یقیناً ہمارے دیکھنے والے ناظرین نے بھی یقیناً آپ کی گواہی سن کر برکت پائی ہوگی۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فیتھ، تو ہم جانیں گے کہ آپ کی نظر میں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کی میری نظر میں ایمان جو ہوتا ہے خدا کے وعدوں پر مکمل بھروسہ، کہ ہمیں کوئی چیز نظر بھی نہ آ رہی ہو لیکن ہمارا ایمان ہو کہ ایک چیز ہے۔ اور اس کا جو بہترین ثبوت ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتا ہے وہ عبرانیوں کی کتاب اس کا 11واں باب اور پہلی آیت میں لکھا ہے، ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ہم میں سے کبھی کسی نے خدا کو نہیں دیکھا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہے اور اس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ وہی ہے جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ بنانے والا ہے، اور ہم اس بات پر بھروسہ بھی رکھتے ہیں۔ اگر ہم عبرانیوں کا پورا چیپٹر پڑھے 11 تو اس میں جو ہے وہ خدا نے ایمان کے بارے میں ہی بتایا ہے۔ اس میں جو ہے ایمان کی بہت زیادہ جو ہے مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ خدا نے کیسے ازل سے ہی اپنے جو تھے ان کے برگزیدہ لوگ تھے وہ کیسے خدا پہ ایمان رکھتے تھے اور خدا ان کی زندگی میں کیسے کیسے معجزے کرتا رہا تھا۔ جیسے کہ ایمان سے ہی جو تھا قائن تھا اس کی قربانی جو تھی افضل ہوئی تھی، اور پھر ایمان کے سے ہی ہنوک کو اٹھا لیا گیا تھا، اور ایمان کے بغیر جو ہے خداوند کو پسند آنا ناممکن ہے۔ آمین۔
सिस्टर जी, आपकी जिंदगी में वो कौन सा लम्हा था जब आपको लगा कि आपके ईमान का टेस्ट हो रहा है? इसके मुतालिक हम बाइबल में से पहले देखते हैं, पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यसु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। आमीन। आमीन। जैसे कि इस कलाम की इस आयत में लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से बहुत बेशकीमत है, यसु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। इसमें हमारा ईमान जो है वो कैसा होना चाहिए, जैसे कि सोना और आग की मिसाल दी गई है। जैसे कि सोने को जब आग में तपाया जाता है तो वो कुंदन बन जाता है, इसी तरह हमारा ईमान जब हम दुख मुसीबतों में से गुजरते हैं तो गुजरने के बाद हमारा ईमान और ज़्यादा मजबूत होता है। ये मैं आपको एक अपने ज़िंदगी की टेस्टिमनी बताती हूँ कि जब हम पाकिस्तान में थे तो बहुत अच्छी हमारी ज़िंदगी थी, हालात बहुत अच्छे थे। इसके बाद हम यहाँ से अपना सब कुछ बेचकर थाईलैंड मूव कर गए, और वहाँ पर जाकर हमें काफ़ी मुश्किलें आई हमारे ऊपर, और खुदा ने वहाँ पर हमें अपने जलाल से भरा और हम उसमें और ज़्यादा मजबूत हुए। लेकिन हमारा ईमान था कि हम जब पाकिस्तान वापस जाएंगे तो वो हमें और ज़्यादा बरकत देगा। और जब हम पाकिस्तान वापस आए तो खुदा ने हमें जो है, हम बिल्कुल ज़ीरो थे लेकिन उसने हमें फिर से उठा खड़ा किया। तो ये हमारा ईमान था जिसकी वजह से हमें आज सब कुछ मिला है और मिलता रहेगा। जी सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। यकीनन जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात करता है और हमें हर मुश्किलात से बाहर निकालता है। जब हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा और हम खुदा पर रख देते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि ऐ बोझ से दबे थके मांदो लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो हमें हर हाल में जैसे भी हो हमें खुदावंद पर तवक्कल करना चाहिए। जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी फैमिली में, घर और घर की जिम्मेदारियों में अपने ईमान को कैसे कायम रखती हैं? घर और मुलाजमत की जिम्मेदारियों के दौरान ईमान कायम रखने के लिए हमें बाइबल जो है बहुत अच्छा जो है बताती है। इसके लिए हमें बाइबल को है जो डेली पढ़ना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि कैसे हमें बाइबल पे वो ही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि घर की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं तो कैसे आप अपना वक्त निकालती हैं कि खुदा को ये वक्त मैंने देना है? उसके लिए तो सुबह के टाइम में सबसे पहले तो खुदा उनके लिए वक्त निकाला जाता है। सुबह मॉर्निंग में तकरीबन 1-आधा घंटा मैं प्रेयर करती हूँ। तो जैसा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, बच्चों को देखना, फिर शौहर को, फिर दूसरे काम, तो फिर मैं रात को जो है मेरा जो है प्रेयर टाइम होता है 10 से 12 बजे तक। उसमें मैं डेली जो है बाइबल स्टडी करती हूँ और अपनी जो प्रेयर होती है वो करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाइबल, एक तो बाइबल, क्या आपने बाकी फैमिली के अफराद को भी लेकर चलती हैं कि आप अकेली? जी, मैं उनको भी साथ हम प्रेयर मीटिंग करते हैं सब मिलकर। यानी कि आप खानदान की सूरत में रात को प्रेयर करते हैं? जी, और जैसा कि बाइबल में भी लिखा है, यशुआ की किताब उसका 24वां बाब और 15 में लिखा है, मगर मैं और मेरा घराना तो खुदावन की इबादत करेंगे। यानी खुदा चाहता है कि घराना जो है वो मिलकर इबादत करे। अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता जब तक हम सब जो मिलकर हैं वो ईमान में मजबूत ना हो। मुश्किल वक्त में हमें अपने ईमान को कैसे कायम रखना चाहिए? मुश्किल वक्त में ईमान को कायम ऐसे हम रख सकते हैं कि खुदावंद पर हम भरोसा रखें कि वो जो हमारा खालिक मालिक सब कुछ करने वाला है वही है जो हमें मुश्किलों और मुसीबतों और दुखों से निकालता है। तो ऐसे ही हम जो हैं वो ईमान रखकर मुश्किल वक्त में कायम रह सकते हैं। जैसा कि इफ्सियों की किताब उसका 6वां बाब और 16वीं आयत में लिखा है, अगर आप पढ़ें तो।
और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। तो इसमें जैसे कि इस आयत में लिखा है, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो। ईमान हमारा जो है वो क्या है, हमारी सिपर है, हमारी ढाल है। अगर हम में ईमान होगा तो हम शरीर के उन तमाम जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं जो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो चाहता है कि हम ईमान में जो है कमज़ोर हो जाएं, गिर जाएं, लेकिन अगर हमारा ईमान मजबूत होगा तो हम क्या है, कायम रह सकते हैं। और इसी तरह जो है दुआ और इल्तिजा हम करें खुदा के हुजूर, जैसा कि फिलिपियों की किताब उसका 4 बाब और 6 आयत में हम देखते हैं। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। आमीन। जी, तो खुदा हमें क्या कहता है कि हमें हर वक्त शुक्रगुजारी करनी है, दुआ करनी है और मन्नत करनी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह हम ईमान में मजबूत तभी हम मुश्किल वक्त में अपने ईमान पर कायम बिल्कुल मुश्किल वक्त जब हम खुदावंद के हुजूर में दुआ करेंगे, दरखास्तें रखेंगे। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने भी फरमाया है कि अगर तुम्हारा ईमान जो है वो राई के दाने के बराबर है तो तुम पहाड़ से कहोगे वो तो अपनी जगह से हट जाएगा। पहाड़ वो क्या है, मुश्किल, चाहे बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हो, मुश्किल के पहाड़ होते हैं, बीमारी, लाचारी, गरीबी, तंगदस्ती, ये सब पहाड़ जो है जब हम ईमान से इनको हटाएंगे तो वो हमारी ज़िंदगी से क्या है, वो हट जाएंगे। जी, आज हमने आपके वसीला से खुदावंद की खूबसूरत बातों को सीखा है। तो मैं अब चाहूँगी कि आप हमारे देखने वाले नाजरीन को कोई ख़ास पैगाम दें ईमान के हवाले से। ईमान के हवाले से मैं यही कहूँगी कि हमें सिर्फ ईमान जो है दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी से नज़र आए कि हम ईमानदार हैं, बल्कि हमारे किरदार से भी ज़ाहिर हो कि हम जो करते हैं वो हमारी ज़िंदगी से नज़र आना चाहिए। अगर हम ईमानदार हैं तो हमारे अंदर जो है वो हम एक नरम दिल होना चाहिए, रहम दिली होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत करने वाले हों, दूसरों से रहम करने वाले हो, जैसा कि बाइबल हमें सिखाती है। ईमान जो है वो क्या है, एक खुदा की नेमत भी है, जैसे कि 9 नेमतें हैं उनमें से एक ईमान भी नेमत है। तो वो खुदा जो अपने लोगों को देता है और हम सबको, जो हमारे देखने वाले हैं और जो इस कलाम पे अमल करते हैं, हम सबको इस कलाम पर अमल करने की और ईमान में कायम रहने की तौफीक दे। आमीन। जी सिस्टर जी, आज आपके वसीला से आपने खुदावंद की बातें हमारे साथ शेयर की है। इससे ना सिर्फ मैंने बरकत पाई बल्कि देखने वालों ने भी ज़रूर बरकत पाई होगी। तो मैं चाहूँगी कि हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो दुआ से करेंगे। जी जी ज़रूर। तो दुआ में सिस्टर आलिया रहनुमाई करें। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा उनकी हजूरी को महसूस करें, जो कुल कायनात का खालिक मालिक है, रब्बुल फ़वाज है। खुदा उन तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा उन आज के इस मौका के लिए खुदा उन जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा और हम तेरे कलाम को खुदा उन दूसरों के साथ शेयर करने वाले बने। खुदा उन इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा उन ये कलाम खुदा उन ज़िंदगियों तक पहुँचे खुदा उन जिन्होंने अभी तक तुझे कबूल नहीं किया, और ये कलाम खुदा उन धोधारी तलवार की मानत खुदा उन बंद बंद और गूदे गूदे से गुजर जाए। क्योंकि खुदा उन तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, जो हमें खुदा उन सिखाता है कि हम हमेशा तेरी राहों पे चलें और खुदा उन तुझे अपना निजात दहिंदा मानते हुए खुदा उन ज़िंदगी के उस ताज को हासिल करें जो खुदा उन तूने हमारे लिए रखा है। खुदा उन इस प्रोग्राम को और ज़्यादा बरकत दे, ताकि इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा उन तेरा कलाम खुदा उन पूरी दुनिया में फैले और लोग खुदा उन अपनी खुदा उन ज़िंदगियों से खुदा उन जो गुनाह आलूदा हैं तौबा करके खुदा उन तेरे हजूर में रज्जू लाएँ और खुदा उन तेरे पास आने वाले बने। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तमाम खुदा उन बातों के लिए जो तू हमारी ज़िंदगी के लिए करता है और जो तू करने वाला है। खुदा उन सब चीज़ों में खुदा उन तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा उन इस मौका के लिए, सोबिया के लिए जो खुदा उन तेरी बंदी खुदा उन इस प्रोग्राम को कर रही, इसको बरकत दे, इसके घराने को बरकत दे खुदा उन
اس وقت خدا میری التجا کو، منت کو، درخواست کو سن اور قبول فرما. جو کچھ مانگتی ہوں تیرے جلالی اور ابدی نام لے کر مانگتی ہوں. آمین. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. دیکھتے رہیے زندگی کا سفر. گاڈ بلیس یو آل. زندگی کا سفر، زندگی کا سفر.